Hello students, today we will be study about Venn diagram and operation on a set. सबसे first, if you see this figure, this is a Venn diagram of set. Let us consider this is here. This is universal set notation. For the universal set, always we use a rectangular figure, and for a set we use a circle diagram. Here given an example here, use will be equal to 1 to 10, means of that universal set में जो हमारे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं वो 1 से 10 कंटेन कर रहा है, and in the set A will be here contain 2, 4, 6, 8 and 10. If you see here, A is the subset of universal set of U. मीन्स यदि हमें वैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करना है तो सबसे फर्स्ट हम वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल फिगर को ड्रॉ करेंगे. इट इज इंडिकेट यूनिवर्सल सेट U. देन आफ्टर we draw a circle which represent a set A. Now represent the element of set A in diagram. It is 2, 4, 6, 8 and 10. Anywhere you write here 2, 6, 4, 8 and 10. Now the remaining element of set U, you write anywhere here 1, 3, 5, 7 and 9. Okay, this is the Venn diagram of this two set. Now take another example here. Here again given U is equal to 1 to 10 is the universal set in which the two set A and B are subset of it. If you see here, in set B, element contained is 4 and 6, which is subset of set A because 4 and 6 is also contained in set A. So how to make the Venn diagram it? First we make rectangle figure of it, then set A and then set B, because B is this is and this is our A and this is our U. Now first indicate the element of set B. This is 4 and 6 and set A की अगर elements को लिखें, because 4 6 हम already set A के लिख चुके हैं, तो remaining element is only 2 and 10. Now the next remaining element of set U will be here 1, 2 is already here, then 3, 4 is here, 5, 6 is here, 7, 8 and 9. This is the Venn diagram of it. वन सेट U में अगर आप देखें तो ये होल जो एरिया है वो सेट U का है. दिस एरिया इज रिप्रेजेंट फॉर द सेट B and this area is represent for set of A. So this is the Venn diagram of this set. Now take other example also. Let's set U is equal to again 1 to 10. 1 to 10. And now let's set A is equal to 1, 3 and 5. And set B is equal to 2, 4 and 6. Set A and set B is subset of set U. Is subset of universal set, and B is also subset of universal set. But here if you see here, no element of set A and B is common. Here 1, 3, 5, here 2, 4, 6. If no element is common, then we make Venn diagram set like that. First we make U, then A and then B in separately. Here A, this is set of A and this is set of B. In set way we represent 1, 2, 3, 1, 3, 5, sorry, and in set B 2, 4, 6, and the remaining element of set U is equal to 7, 8, 9 and 10. So this is the Venn diagram of two disjoint set because no element common in this two set. Now इस स्टडी को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे because this study and the operation on the set is combined. Now
वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन ए सेट हम कंबाइन करते हुए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं व्हाट इज द ऑपरेशन ऑन ए सेट। जो जैसे हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं, 1+2, 1 मल्टीप्लाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 minus 3. These all are plus, multiplication, division and minus are operation on numbers. Okay, तो similarly हम operation on set define करेंगे। तो first operation जो हम define करते हैं union of set, union of set। let यहाँ पे अगर example लें, simple सा first clear कर लेते हैं। set A contain 1 2 and set B contain A and B. A union B means what? A union B means all element which containing A or B. Here I am use the word A or B. या तो A में हो या B में हो. Means first you write the element of set A and then set of B. This is called the union of A union B. Next, if here also 1, if 1 means of that 1 is included in bar set, then there is no need to repeat it 1 here. Only one times हम उस एलिमेंट को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो A यूनियन B मीन्स ऑफ दैट अगर हम डेफिनेशन सेट बिल्डर नोटेशन में डिफाइन करें तो A यूनियन B विल बी इक्वल टू X such that X is element of set A or X is element of set of B. आइदर वो एलिमेंट सेट ए का हो, आइदर वो एलिमेंट किसका हो, सेट बी का हो। यदि हम इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखना चाहें तो सबसे फर्स्ट हम यू को ड्रॉ करेंगे, मीन्स ऑफ दैट यूनिवर्सल सेट। इफ द सेट हैविंग कॉमन एलिमेंट्स देन यूनियन डायग्राम ऑफ द टू सेट, all element which included A and B. This shaded region, all element which included in this shaded region is called A union of B. If the set are disjoint, if two set A and B are disjoint means no common element in set of A and B, then A union B means all element which included in this shaded region, A union of B. So means of that definition of A union B means of that the union of two set A and B is the set C, which contains all those elements which are either in A or either in B, including those which are in both. In symbol we write A union B is equal to X is a union element of A or X is element of B. This is the Venn diagram for the A union B. The shaded region is show the portion of A union B. Now, what is the property of it? Property of the operation of the union. If we take A will be equal to 1 2 and B is equal to A and B R1, then A union B is equal to, अभी हमने लिखा just A B and 2। अगर हम B union A फाइंड आउट करें मीन्स ऑफ दैट सेम एलिमेंट्स आपके आएंगे 1 2 A and B, मीन्स ऑफ दैट A union B and B union A आपका क्या होता है, सेम होता है। जैसे हम किसी नंबर का एडिशन करते हैं 1 + 2 is equal to 2 + 1, but 1 - 2 does not equal to 2 - 1। मीन्स ये ऑपरेशन एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ का क्या करता है, फॉलो करता है, बट द सब्ट्रैक्शन इज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव। मीन्स अब हम क्योंकि ऑपरेशन कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, सेट में डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स ऑपरेशन ऑफ यूनियन A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है, B यूनियन A। मीन्स ये कम्यूटेटिव लॉ का क्या करेगा, आपको फॉलो करेगा, बिकॉज ऑर्डर को चेंज करने से उसमें ऑपरेशन में कोई भी उसके आंसर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आता, मीन्स वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है।
So this is first property, A union B is equal to B union A. Now what means of the associative property? Associative property of addition means on natural number this. अगर हम 1+2 करें देन 3 ऐड करें 3+3 और हियर हम सबसे फर्स्ट 2 और 3 को ऐड करें 1 को ऐड करें तो 5+1 बहुत आंसर हमारे 6 आएंगे. तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इन जनरल हम क्या उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं a+b+c विल बी इक्वल टू a+b इन ब्रैकेट प्लस c. मीन्स इफ यू चेंज द ऑर्डर फॉर्म, यदि b प्लस सी को ऐड करें फिर a को ऐड करें और ए बी को ऐड करें c को ऐड करें तो दे आंसर्स में कोई चेंजेस नहीं होते. तो हम कहते हैं कि एडिशन फॉलो द लॉ ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. द सेम वे इन द यूनियन में भी आपका होगा कि a यूनियन b यूनियन c विल बी इक्वल टू a यूनियन b यूनियन ऑफ c. ओके, यदि हम अब चाहें तो ऑपरेशन से भी इसको एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकते हैं. आप भी अपने से कोई एग्जाम्पल लेते हुए इसे बना सकते हैं. लेट 3 एंड यहाँ पे ऑल्सो 1 को इंक्लूड कर लेते हैं और सी हम सेट ले लेते हैं. दिस इज 2 एंड 4. तो सबसे फर्स्ट यदि हम निकालें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हमारे कौन से एलिमेंट इंक्लूड होंगे 1 2 एंड 3. A union B will be equal to 1 2 and 3. Now A union B के बाद अब ये सेट आपके पास A union B आया. Now union of C फाइंड आउट करिए आप. A union B union of C मीन्स इस 2 सेट में ऑपरेशन अप्लाई करें तो इट बिकम्स 1 2 3 and 4. दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. नाउ अब राइट हैंड साइड को क्लियर करें तो सबसे फर्स्ट हम बी यूनियन सी निकालेंगे. तो बी यूनियन सी में आपके जो एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे बी यूनियन सी में 1 2 3 4 ऑल हो जाएंगे. एंड बी यूनियन सी ऑफ यूनियन ए करेंगे तो अगेन हमारा जो सेट आ जाएगा इट इज 1 2 3 4. ओके, मीन्स ऑफ दैट ए यूनियन इज इक्वल टू बी यूनियन सी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका देखते हैं. A आपके पास इफ A इज एनी सेट 1 2 एंड 5 मीन्स हमारे पास क्या होता है एम्प्टी सेट. यदि हम A यूनियन एम्प्टी सेट फाइंड आउट करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा सेट ऑफ A. अगर यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 से 10, लेट कंसिडर यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट A. देन अगर इफ यू फाइंड U union A then what happen again it is U. Okay, so this is the property of operation of union. Next define करते हैं intersection of set. Intersection of set means all element which include in set A and B. Here I am use the word of intersection. If B is equal to 2 and 3 means A intersection B means of that it is only 2 because 2 is included in both set. All common element of set and B. So A intersection B means of that 2. And now if he wants to find B intersection A means of that same. A intersection B is equal to B intersection A. Okay. अगर हम इसका set builder definition देखें A intersection B means of that X is such that X is element of set A and X is element of set B. यूनियन में हम आर वर्ड यूज किए थे, यहाँ पे हमने कौन सा वर्ड यूज किया है ए बी यू एंड वर्ड को यूज किया है. उसका वेन डायग्राम यदि देखें तो दिस इज आवर सेट ऑफ यू, दिस इज सेट ए एंड दिस इज द सेट ऑफ बी. सो दिस कॉमन पोर्शन because this common portion is included in A and B both. This is our set A and this is set B. So this common portion is included in both set. Hence this is the shaded diagram of A intersection B. अगर हम definition देखें तो the intersection of two set A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B
and A intersection B means X is element of A and X is element of B. This shaded portion is represent the diagram of A intersection B. If the sets are disjoint means there is no common element, means there is no shaded portion. So if the set are disjoint, if the two sets are disjoint set, if there is no common element in the both set, then set is called the disjoint, otherwise it is called the overlapping set. Just like यदि हम A ले ले 1 and 2 and B आप ले लें 2 and 3, तो here the 2 is common, so A intersection B is equal to 2 means of that this is overlapping set. तो ओवरलैपिंग सेट में हम जब डायग्राम बनाएंगे उसको ओवरलैप करते हुए बनाएंगे. अगर सेट में हमारे एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो हम डिसजॉइंट सेट बनाएंगे. सो दिस इज डायग्राम फॉर द डिसजॉइंट सेट. अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. वो कम्युटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कैसे आएगा. तो हम एग्जांपल ले लें. यदि a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 2 3 एंड c इज इक्वल टू 3 2, 4 2 ले लीजिए यहाँ पे 4 2. ओके, नाउ a इंटरसेक्शन b मीन्स विच सेट 2. हमारा a इंटरसेक्शन b में कौन सा एलिमेंट्स इंक्लूड होगा, 2. अब इंटरसेक्शन ऑफ c निकालेंगे तो अगेन a इंटरसेक्शन b एंड सेट c में कौन से एलिमेंट्स आने वाले, एलिमेंट 2 आना है. तो इस सेट की जो वैल्यूज आएगी वो हमारी क्या आएगी, 2 आएगी. नाउ दिस बी इंटरसेक्शन सी मीन्स कॉमन एलिमेंट इन बी एंड सी. तो कॉमन एलिमेंट इन बी एंड सी मीन्स ए बी इंटरसेक्शन सी कौन सा सेट होगा, 2 होगा. नाउ इंटरसेक्शन बिटवीन ए एंड दिस सेट मीन्स बी इंटरसेक्शन सी. अगेन ए एंड दिस सेट में यदि हम कॉमन एलिमेंट निकालें तो क्या आएगा, 2. मीन्स बॉस पोर्शन की जो वैल्यूज आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, सेम आ रही है. इट इज इक्वल टू 2. ओके, नाउ नेक्स्ट यदि हम किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ अगर ऑपरेशन अप्लाई करें, इंटरसेक्शन, लेट बी इज आवर एम्प्टी सेट, देन डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट मीन्स बी को अगर निकालेंगे तो अगेन क्या आने वाला है, आपका एम्प्टी सेट आने वाला, बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट हियर. तो ए इंटरसेक्शन बी आर बी, ए इंटरसेक्शन फाई आर फाई इंटरसेक्शन ए अगेंस्ट किसके इक्वल होगा, सेट ए के इक्वल होगा. नाउ इसको प्रूव करें. हियर द यू विल बी इक्वल टू 1 2 लेट 10 एंड सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5. बिकॉज ए जो है सबसेट ऑफ क्या है, यू है, तो डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन यू क्या होने वाला है, आपका सेट ऑफ ए के इक्वल होने वाला है. Because all element of set A is also included in set of U, then A intersection U is equal to A. Now fifth property को देखते हैं. This is called the distributive property. इसके लिए हम 3 सेट लेंगे और फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड को इसको प्रूव करेंगे. लेट सेट A will be equal to 1 2, set B is equal to 2 3 and set C is equal to 3 2 and 4. ओके, सबसे फर्स्ट अपन निकालते बी यूनियन सी. व्हाट इज द बी यूनियन सी? बी यूनियन सी मीन्स ऑल एलिमेंट विच इंक्लूडेड आइदर ए बी आर सी. इट इज 2 3 4. इंटरसेक्शन ऑफ ए, यदि इसका ए के साथ हम इस सेट का इस सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ओनली डेफिनेटली क्या आने वाला है, हमारे उस सेट में क्या इंक्लूड होने वाला है, इस सेट में 2 इंक्लूड होने वाला है. सो आवर आंसर ऑफ दिस सेट इज ओनली 2. नाउ अब इस डायरेक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं. तो अगेन सेट ए हमारे पास जो हमें याद रखना है, इट इज़ 1 2. बी सेट में हमारे पास क्या था, इट इज़ 2 3 एंड सेट सी में हमारे पास क्या था, 3 2 एंड 4. तो सबसे फर्स्ट निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी डेफिनेटली 2 आएगा. and A intersection C. A intersection C means common element in A intersection C again 2. Means A intersection B
जो हमारा सेट आया वो कितना आया, 2 आया। एंड A इंटरसेक्शन C भी आपके पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इनका अगेन अगर हम यूनियन फाइंड आउट करें, यूनियन मीन्स जिस टू सेट में इंक्लूड होने वाले जो ऑल एलिमेंट्स उसको लेंगे तो इट इज़ ओनली 2। हैंस इस डायरेक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। हैंस A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A intersection B union A intersection C. This is called the distributive property of intersection over union. अगर आप यहाँ पे डिफरेंट वेन डायग्राम देख रहे हैं तो वेन डायग्राम को भी थोड़ा क्लियर कर लें। दिस इज द वेन डायग्राम फॉर द B यूनियन C बिकॉज ऑल एलिमेंट जो B और C में इंक्लूड हो रहे हैं उसको शेडेड किया है। दिस इज डायग्राम फॉर द A इंटरसेक्शन B बिकॉज A और B में जो कॉमन पोर्शन है उसको शेडेड किया है। दिस इज डायग्राम फॉर A इंटरसेक्शन C बिकॉज जहाँ A एंड C का कॉमन पोर्शन है उसको शेडेड किया है। एंड दिस इज द डायग्राम फॉर A इंटरसेक्शन B यूनियन C। मीन्स इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप U A B एंड C को ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट B यूनियन C मीन्स ऑल रीजन विच इज इंक्लूडेड इन B एंड C, दिस वन। अब इंटरसेक्शन A निकालना है मीन्स जो सेट A एंड B यूनियन C में कॉमन है। तो सेट A ये हमारा है, सेट B ये है, सेट C ये है, तो B यूनियन C आपका ये है। तो A इंटरसेक्शन मीन्स विच वन, दिस कॉमन पोर्शन। ओके, सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर A इंटरसेक्शन B यूनियन C डबल शेडेड पोर्शन, ये हमारा है। नेक्स्ट इसका डायग्राम को निकालते हैं। व्हाट इज, कैसे इसने निकाला, हाउ टू फाइंड द शेडेड पोर्शन ऑफ इट। This is our U, this is A, this is B, this is C. सबसे फर्स्ट हम A इंटरसेक्शन B पोर्शन को लेते हैं। A इंटरसेक्शन B मीन्स कॉमन पोर्शन ऑफ A एंड B। दिस इज कॉमन पोर्शन ऑफ A एंड B। ओके, एंड नेक्स्ट A इंटरसेक्शन C मीन्स कॉमन पोर्शन ऑफ A इंटरसेक्शन C। कॉमन पोर्शन ऑफ A इंटरसेक्शन C अगर आप लेंगे तो ये आपका आएगा कॉमन पोर्शन, ये A एंड C का कॉमन पोर्शन आएगा। ओके, ये कॉमन पोर्शन आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें इन दोनों का यूनियन लेना है तो यूनियन मीन्स अब क्या होगा आपके पास कि जहाँ पे दोनों पोर्शन होते हैं। तो दोनों पोर्शन कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये और ये आ रहा है। ओके, तो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर, देखिए यहाँ पे ये पोर्शन सेम आया है। तो हेंस दिस इज द वेन डायग्राम फॉर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यदि देखें तो दिस टू पोर्शन इज सेम। एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आपको समझा रहा है। ओके, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इन इंटरसेक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट मीन्स ऑफ दैट सिंपल A is equal to let 1 and 2 and B is equal to 3 and 1 and 4। तो A माइनस बी मीन्स जैसे आपको 2 से 4 सब्ट्रैक्शन करने, 2 से 1 सब्ट्रैक्शन करने बोलेगा तो 2 में से आप 1 को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो आपका क्या आएगा आंसर 1। तो सिमिलरली ऑपरेशन A माइनस बी मीन्स सेट A में से आप B के एलिमेंट जो इंक्लूड हो रहा है उसको हटा दीजिए। तो विच वन इंक्लूडेड हियर 1, तो रिमेनिंग इज ओनली 2। दिस इज अवर A माइनस बी एंड B माइनस A निकालने, B माइनस A करने बोलेगा मीन्स अब दैट आप B में से A को हटाइए। B में जो A के एलिमेंट इंक्लूड कर रहे हैं, कौन सा इंक्लूड कर रहा है, 1, तो दिस इज द B माइनस A। यदि हम इसको वेन डायग्राम मेथड से देखें तो इट इज अवर U, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B। तो A माइनस B मीन्स ऑफ दैट ओनली उस सेट पोर्शन को लेना है जिसमें A और B का कॉमन पोर्शन ना हो। A में से B के पोर्शन को हमें क्या करना है, हटाना है। तो मीन्स ऑफ दैट दिस पोर्शन, दिस इज एवर A माइनस B सेट। बिकॉज इस पोर्शन में जो आपका इंक्लूड हो रहा है, इस पोर्शन में जो इंक्लूड हो रहा है वो हमारे कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहा है। हमने B के पोर्शन को क्या कर दिया, हटा दिया। सो दिस इज शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड द डायग्राम ऑफ A minus of B। Similarly, this portion is represent the
डायग्राम ऑफ B माइनस ऑफ A। यदि इन जनरल हम सेट बिल्डर नोटेशन में डिफाइन करें तो A माइनस B इज इक्वल टू X, so that X is element of set A and word use करेंगे X is element of set A and X is does not element of set of B, and B minus A के लिए X is element of B and X is not element of set of A. Okay, so this shaded portion is represent A minus B and this shaded portion अगर representation करेगा तो किसको represent करेगा? यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो B minus A को डिफाइन करेंगे एंड A माइनस बी डज नॉट इक्वल टू क्या होगा B माइनस ए, जैसे कि यहाँ पर डिफाइन किया है A माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इज एलिमेंट ऑफ A एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। ओके, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे या आप ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपसे बनेंगे। थैंक यू।